اور بریک پہ ہم گئے نیوز بریک آپ نے سنی خبریں اور واپس ہم اسٹوڈیو کی جانب آئے ہیں. ہمارے دیگر پارٹیسپینٹ جو ہیں اور کچھ نئے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا, ان سے آپ کا تعارف کرواتے چلوں. جناب عطاء الرحمان خلجی صاحب پہلے بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, پچھلے سیگمنٹ میں بھی, اب یہاں بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمایا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب احمد صغیر, جن کو تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا NA 53 اور 54 سے رپورٹنگ کر رہے تھے, اب آ چکے ہیں اسٹوڈیو. تو ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں جوائن کرے تاکہ یہاں ہمیں بہتر تجزیہ دے سکے. دوسری جانب تشریف رکھتے ہیں جناب, آپ تعارف کروا دیجیے ہمارے دونوں سینئر مہمانوں کا. جی, ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ناصر گل صاحب اور رانا کیسر صاحب, PTV کے ایکسپرٹس ہیں, اینڈ دے ول ایلیبوریٹ وٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن. یہ بتاتا چلوں ناظرین کے بریک کے دوران جو الیکشن کا ووٹنگ کا ٹائم تھا وہ ختم ہو چکا, اور اب ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہونا شروع ہو گئے, اور اس کے بعد جیسے جیسے یہ اپنے کرشنڈو میں آئے گا تو ہم جو ہے آپ کے پاس ساری ڈیٹیلز لے کر آئیں گے. لیکن اس سے پہلے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کشمیر خان نے ہمیں پشاور سے جوائن کیا ہے, ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے وہاں کی لیٹسٹ اپڈیٹ لیتے ہیں, پھر اپنے یہاں مہمانوں سے بات کریں گے. جی, اوور ٹو یو کشمیر خان صاحب, آپ ہمیں. جی یوسف خان صاحب ہے نام, کریکشن کر لیتے ہیں. جی یوسف خان صاحب, ہماری کال ڈراپ ہو گئی ہے, دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ہمارا رابطہ ہو اور ہم ان سے ڈیٹیلز لے سکیں. آپ سوال کرنے لگے تھے گل صاحب سے. جی گل صاحب, ابھی تک جو الیکشن پروسیس ہے اس کے بارے میں ذرا تبصرہ کیجیے گا. دیکھیں, اوور آل تو میں سمجھتا ہوں کہ ویل ڈن, سب چیزیں ہو گئی اور مقررہ وقت بھی ختم ہو گیا. تمام پارٹیز اور لوگوں میں بھی, ووٹرز میں بھی جوش و خروش دیکھا گیا, اور کچھ شکایات بھی موصول ہوئی الیکشن کمیشن کو پورے پاکستان میں, جن میں سے زیادہ تر جو ہے نا وہ جو الیکشن جو عمل تھا وہ سست روی کا شکار, اور کہیں لیٹ شروع ہوا اور کہیں کچھ معاملات ہیں. لیکن یہ ایک روٹین میٹر ہوتا ہے, یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. کچھ سب سے جو بڑا واقعہ آج ہوا ہے وہ ظاہر بات ہے, وہ کوئٹہ میں بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہوا جو کہ ہماری پوری قوم کے لیے چیلنج ہے. اور آج جو اس کے بعد میں نے بلوچستان میں جب دیکھا لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں, میرا خیال ہے کہ انہوں نے بڑی بخوبی اور بڑی اسٹارٹ انہوں نے جواب دیا ہے کنوکشن سے کہ وی آر ہیئر ٹو ووٹ فار پاکستان, اور وی ہیو ٹو مارچ آن دا کورس آف ڈیموکریسی. اور یہ لوگوں کی پارٹیسپیشن کے بغیر یہ ممکن ہرگز نہیں. بالکل صحیح ہے. رانا کیسر صاحب کو بھی اگر آپ کی اجازت ہو شامل کر لیں, جلدی کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد رانا صاحب آپ کا تبصرہ ابھی تک آپ نے جو پروسیس دیکھا ہے اس کے بارے میں بتائیے. پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ ایک طویل عرصے سے ایک بحث ہو رہی تھی کہ کیا انتخابات ہو سکیں گے اور کیا مقررہ تاریخ پر ہو سکیں گے. پچھلے 5 سال سے میں یہ تجزیہ سنتا آ رہا, اور خبریں اور جو ایک ماحول بنایا جاتا ہے, کبھی ماشاء اللہ لگ رہا ہے, کبھی پارلیمنٹ ڈیریل ہونے کی بات ہو رہی ہے, نئی اسمبلیاں آنے کی بات ہو رہی ہے. بہرحال ہماری قوم کی ریزیلینس, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, کمٹمنٹ ٹو ڈیموکریسی, آج ہم نے وہ دن بھی دیکھ لیا, وہ گزر بھی گیا. 6 بجے تک کا ٹائم تھا, گزر گیا. لوگوں نے اپنا رائٹ ٹو فرنچائز ایکسرسائز کیا. اور جیسے میں نے پہلی ٹرانسمیشن میں اسمینا آپ سے بات کر رہا تھا کہ لوگوں کا جو جوش مجھے آج نظر آیا وہ الیکشن کمپین کے دوران نہیں تھا, وہ بڑی لیک لسٹر تھی. آج صبح سے لے کے ٹل دی کلوزنگ آف پولنگ اسٹیشنز آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ہمارے نمائندے بتاتے رہے ہیں کہ ایک جوش و خروش تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے, اور پارٹیسپیشن کا لیول جو ہے ہوپ فلی وہ زیادہ ہوگا, کیونکہ ابھی رزلٹ آئیں گے, اس کی بنیاد پر طے کیا جائے گا کہ ٹرن آؤٹ. اب آپ کو دوبارہ شامل کریں گے. ہاں جی, کشمیر خان آفریدی نے ہمیں جوائن کیا ہے پشاور سے, ان سے ہم لیٹسٹ اپڈیٹ لیتے ہیں. جی کشمیر خان, پشاور کی صورتحال ہمیں بتائیے گا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی, اور آج تک اب تو چونکہ پولنگ ختم ہو چکی ہے, دن بھر کیا سچویشن رہی, ٹرن آؤٹ آپ کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیا بتائیں گے؟ جی سمینا, اپڈیٹ یہ ہے کہ جو پولنگ کا مقررہ وقت تھا وہ ختم ہو چکا ہے. 6 بجے تک پولنگ کا ٹائم تھا, لیکن اس کے باوجود بعض پولنگ اسٹیشن اس طرح ہے کہ اس کے احاطے کے اندر کچھ ووٹر ابھی بھی موجود ہیں اور ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے موقع فراہم کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بعض پولنگ اسٹیشن پر ہمیں یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں پر کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے, اور وہاں پر جو ووٹ شدہ ووٹ ہے ان کی گنتی جاری ہے. جو سب سے زیادہ خوش اسلوبی کی بات تھی وہ آج پرامن
पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद था। सूबे भर में जिस तरह खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि कुछ खुदा न खास्ता लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन पेशावर समेत सूबे के जितने अजला हैं और जो खासकर जो सूबे में अभी जमशुदा अजला हैं, कबायली अजला जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ भी पुरअमन माहौल में पोलिंग का नामंजूर हो गया है। सिवाय सवाबी के जहाँ पर एक फायरिंग का वाक़या हुआ था, एक शख्स के जमा होने की इत्तला है और 3 अफराद जख्मी हुए थे। जी समीना, थैंक यू सो मच हमें अपडेट करने के लिए। जी कमिंग बैक टू द स्टूडियो, हमने अपने 2 गेस्ट की तो बात सुन ली, लेकिन बाकी 2 के तरफ भी चलते हैं अगर आपकी इजाजत हो। और तबसरा आज के दिन का आप कर दीजिए ताकि हम फिर उससे आगे बढ़ सकें। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और स्पेशली पाकिस्तानी अवाम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि इतना बड़ा एक माइलस्टोन जो था वो आज हमने अचीव कर लिया है। और ये डेमोक्रेसी का एक जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है ये आगे जा रहा है, और इसमें विद पैसेज ऑफ टाइम लोगों की ग्रूमिंग भी होगी, लोगों में मेच्योरिटी भी आएगी। और जैसा कि पहले जिक्र किया गया कि जब इलेक्शन से पहले लोग जो थे वो एस्पर्जन्स कास्ट कर रहे थे, मुख्तलिफ खदशात का इजहार कर रहे थे कि जी पता नहीं इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस तरह की जो भी गलत बातें जो फैलाई गई वो सब आज दम तोड़ गई हैं। और ये एक बड़ा यानी पाकिस्तान के लिए बहुत एज ए नेशन एज ए स्टेट हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इलेक्शन का एक इतना बड़ा मरहला जो है वो बखैर खूबी अंजाम को पहुँच गया है। कुछ स्कैटर्ड इंसिडेंट्स हुए और कोयटा में जो एक वाक़या तो वो बड़ा ट्रेजिक हुआ जिसपे पहले भी हमने बात की, उससे बेटर नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। मेरे ख्याल में इस्लाम है पाकिस्तानियों, बिल्कुल रेजिलियंस जो है पाकिस्तानी नेशन की वो उसको रिफ्लेक्ट किया गया। बिल्कुल सही। अहमद सगीर, आपने सारा दिन इस्लामाबाद से रिपोर्ट किया है, आपने भी हालात देखे होंगे, तबसरा कर दीजिए आज के दिन के ऊपर, अभी तक आपने क्या देखा और आपका जो वैसे एहसास है मौजूदा हालात के बारे में उसका भी बताओ। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ बताऊं कि सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, मैं रावलपिंडी में भी सुबह जी सही 60-62 दोनों हलकों में, चूंकि 60 में इलेक्शन नहीं हो चुके लेकिन सूबाई असम्बलियों के हो रहे हैं वहाँ पे। फिर ये है कि 62 वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे अवामी मुस्लिम लीग के जो है। फिर इसी तरह जो है इस्लामाबाद के दोनों हल्के जो है जहाँ मैं गया 53 और 54। अच्छा, ये सारे जो तीनों हल्के हैं ये बड़ी भारी भरकम पर्सनैलिटीज यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है, स्पेशली इस्लामाबाद वाले हल्के जिसमें 53 में जिसमें खान साहब हैं, इमरान खान साहब है, खाका नवाज़ी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे और इमरान खान साहब जो है वो एक पार्टी लीडर। तो मैंने देखा कि लोगों के अंदर इन हलकों में बहुत ज्यादा इंथ्यूजिज्म था। सुबह के वक्त जब मैं 62 में था तो 62 में मुझे बड़ी लंबी लंबी लाइनें नजर आई। मैं बहुत अर्ली चला गया था वहाँ पे, तो मुझे मतलब है कि जब मैं सुबह 7:45 बजे के करीब मैं वहाँ पहुंचा पोलिंग बूथ के बाहर, तो उस वक्त अभी पोलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन इसके बावजूद लोग खड़े थे ताकि वो सुबह सुबह अपना वोट कास्ट करके जो है वो वहाँ से चले जाए। इसी तरह जो है यहाँ इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद का आपको पता है कि एक खास मिजाज है, लोग थोड़ा लेट उठते हैं और फिर उसके बाद उनकी कोशिश होती है कि वो आके जो है वो अपना वोट कास्ट करें। बट इवन देन सारा दिन जो है वो पोलिंग चलती रही, दरमियान में आके थोड़ी सी स्लो हुई थी दोपहर के वक्त जो मुझे नजर आया। लेकिन जो इस्लामाबाद के वो एरियाज, फॉर एग्जांपल जो G6 के एरिया है या मेलोडी और मेलोडी के आसपास के जितने एरियाज हैं, प्लस ये है कि आप देख लें ये आपारा, फिर इसी तरह जो है जो छोटी बस्तियां हैं वहाँ पे जहाँ पे पूरा दिन धड़ाधड़ जो है वो वोट चलते रहे। हाँ, अलबत्ता जो पोश एरियाज हैं यहाँ के F8, F7, F10, इन एरियाज में मॉर्निंग में ज्यादा था, दोपहर के वक्त थोड़ा कम हुआ, लेकिन कम हो गया। काफी बेहतर सिचुएशन उन्होंने बताया। एक चीज फर्क जो बताया है इन्होंने अभी खुसूसन इस्लामाबाद के हवाले से, हमने ये देखा था कि 2013 के इलेक्शन में कि काफी टर्न आउट था, लोग बाहर निकले थे, बड़ा अच्छा, हमने दिन भर भी देखा लाइनें लगी रही और लोग वोट जो है वो पोल करते रहे। अभी जो आप पोजीशन बता रहे हैं, तो क्या आप जो है इस हवाले से आपको लगा थोड़ा सा कि अच्छा, ये बात को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस वक्त बात कर रहे हैं, मीडिया से वहाँ चलते थे। उसके बाद एक और पॉलिटिकल पार्टी ने, फरदुल्लाह बाबर साहब ने दरखास्त दी पोलिंग का टाइम बढ़ाने की। इलेक्शन कमीशन ने उस दरखास्त के ऊपर ये फैसला फरमाया कि टाइम नहीं बढ़ाया जाएगा, ताहम जो अहाते में लोग मौजूद होंगे और जो लोग कतारों में खड़े होंगे उनका वोट डलवाया जाए। ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई और ये हुक्म भी जारी कर दिया गया
लेकिन अभी चंद मिनट पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसके अंदर इसका नोटिस लिया है और मुझे भी हुक्म दिया है और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन साहब को भी टेलीफोन किया है कि इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि कोई वोटर जो पोलिंग स्टेशन के बाहर है वो मिस ना हो, यानी कि चाहे वो अहाते में आए चाहे वो बाहर कतार में खड़ा हो, उसको हम उससे हर एक वोटर से वोट डलवाएं। चुनांचे मैं फौरी तौर पे मैं आपके ज़रिए से तमाम अपने इलेक्शन के अमले को, तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये अर्ज करूंगा कि इस चीज़ को इंश्योर करें कि किसी वोटर को वापस ना जाने दें और उनसे वोट डलवाएं। मैं एक दफ़ा फिर वो एहलकार, वो सिक्योरिटी के इदारे, चारों सूबों के IG साहबान, वो फौजी जवान जो पोलिंग स्टेशनों पे ड्यूटी देते हैं, उनको मैं ख़ास तौर पे उनको ये कहता हूँ कि बाहर जो लोग पोलिंग के लिए हाजिर हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पर कतारों में हैं, उनको वोट डलवाएं, उनको फैसिलिटेट करें और जितने भी इस वक्त वोटर उसके बाहर मौजूद हैं उनसे वोट डलवाने के अंदर उनको किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। वक्त नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको तमाम को वोट डालने के लिए, जैसा कि अभी जस्ट नाउ मैंने आपको किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया है कि उनको इलेक्शन कमीशन फैसिलिटेट करे और इंश्योर करे कि हर वोटर वोट डाल के घर वापस जाए। इसके लिए मैंने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को पहले ही अभी हिदायत करके आया हूँ और मैं अभी तमाम IG साहबान को भी मुतला कर रहा हूँ और इसके अलावा सिक्योरिटी एहलकारों को भी। के इंतखाबात को 2018 से कंपेयर करें, अमन अमान के हवाले से, टर्न आउट के हवाले से, इंतजामात के हवाले से तखमीना क्या है? इस वक्त मैं टर्न आउट के हवाले से कोई तखमीना इसलिए नहीं देना चाहता हूँ कि बहुत कबलत वक्त है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंतजाम बहुत अच्छे थे। हर जगह से हमें अच्छे इंतजाम की इत्तला मिली है। अगर कहीं कोई बदनज़मी हुई है, अगर हमारी वजह से हुई है, मैं इसके लिए माजूर था हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 2013 के मुकाबले में इलेक्शन यकीनन बहुत बेहतर, ज़्यादा मुनज़्ज़म और हर लेवल के ऊपर बेहतरीन इलेक्शन नजर आए। सिर्फ ये जो कोयटा का एक हादसा हुआ है उसको आप मामूली हादसा तो नहीं कह सकते, इतनी ट्रेजेडी हुई, लेकिन मैंने आपको याद होगा कल भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि हमें थ्रेट्स अभी भी मौजूद हैं। मैं जब भी कहता हूँ आप लोग समझते हैं शायद ये ऐसे कह के चला जाता है। हादसा हुआ, उसी दुश्मन ने अटैक किया, अल्लाह मेहरबानी करेगा ये जमहूरियत का सफर जारी रहेगा। ये मैंने आपसे फौरी बात की है, आपसे अभी आज रात बात होती रहेगी, हमारे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब साहब की बातें सुनी, उसके अंदर खास तौर पे उन्होंने एक कंसेशन का ऐलान किया और वो ये है कि पहले जो कानून के मुताबिक बात ये है कि अगर अहाते में पोलिंग स्टेशन के कोई खड़ा हो तो उसको वोट डालने का हक देते हैं 6 बजे के बाद भी, लेकिन आज उन्होंने ये खास तौर पे ऐलान किया है कि अगर कतार में कोई भी खड़ा है तो उसको वापस ना जाने दिया जाए, ताकि वो अगर आ चुका है, कतार में लगा हुआ है, बेशक के लेट भी हो गया, लेकिन टाइम उन्होंने कहा वही 6 बजे का जो टाइम था उसको उनको नहीं बढ़ाया, लेकिन ये रिलैक्सेशन है कि जो वहां पे आ चुके हैं, लाइनों में खड़े हैं, चाहे मर्द हैं, खवातीन हैं, नौजवान हैं, उनको अपना वोट जो है वो पोल करने दिया जाए। इसके अलावा दो और बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा 2013 के इलेक्शन के निस्बत 2018 के जो इलेक्शन कमीशन के जो करवाए हैं, जो इंतजाम हैं, वो उन्होंने कहा कि वो उससे कई गुना बेहतर जो सूरत हाल है। कोई इक्का दुक्का अगर कहीं कोई चीज है तो उन्होंने कहा कि उसके लिए उन्होंने माजरत दी कि उन्होंने कहा कि पहले से हालात जो है वो बहुत बेहतर है और मेरे ख्याल से हमारे सारे स्ट्रिंगर्स ने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया है, एंडोर्स किया और एक्नॉलेज किया। बिल्कुल सही है। एक बात जरूर है कि अभी तक उन्होंने टर्न आउट का नंबर नहीं दिया, लेकिन ख़वातीन और हज़रात, अगर आप अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको याद दिलाते चले इलेक्शन का टाइम खत्म हो चुका। 6 बजे जो इलेक्शन थे, कौमी इलेक्शन, वो कंक्लूड हो गए। अब इस वक्त गिनती जारी है, कुछ पोलिंग स्टेशन पे गिनती जारी है, कुछ पे अभी भी जहां लोग खड़े हैं उनको ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन बाहर क्या गिनती का जो है अमल भी जारी है। और एक बात जो इम्पोर्टेंट है, 7 बजे से पहले किसी फैसले के ऐलान
की इजाजत नहीं है। अगर कोई चैनल कर रहा है या तो वो झूठ बोलेगा या फिर वो कानून तोड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये इसीलिए किया गया है क्योंकि माजी के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं 2013 के इलेक्शन में उस पर लोगों ने नुक्ता उठाया, पॉइंट्स उठाए। सो इस वक्त इन चीजों को जो है वो किया जा रहा है। राना साहब, इस हवाले से आप क्या कहते हैं, किस कदर आप समझते हैं 2013 के इलेक्शन को 2018 के इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए, सारे कयास के बावजूद जो लोग फैलाते रहे कि होंगे नहीं होंगे, अब क्या सिचुएशन? देखिए, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो जो क्या सराइयां थी, जो खदशात थे, वो तो गलत साबित हुआ। अभी सेक्रेटरी साहब जो बात कर रहे थे मैं उस पर बात करना चाहूँगा। देखिए, टाइम तो बढ़ाया नहीं गया, एक थोड़ा सा भाम है मेरे ख्याल, अगर वो इलेक्शन कमीशन उसको क्लियर कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा कि जो लोग अहाते के अंदर मौजूद हैं उनको इजाजत होगी कि वो अपना वोट कास्ट करके जाए। कुछ जगह मैंने ऐसी देखी अहातों से बाहर भी कतारें लगी हुई हैं, उस हवाले से उसमें वो कतार की भी कोई डेडलाइन होगी, कट ऑफ टाइम होगा कि इतने टाइम तक हम करेंगे। ये ओपन एंडेड तो आप नहीं छोड़ सकते इस बात को कि बाहर कतार लगती चली जाएगी और आप कहेंगे कि रात 12 बजे तक भी आप पोलिंग करवाएंगे, रोक लेंगे ना। नहीं, अगर भी ऐड होता है तो उसको रोक लेंगे। अब देखना होगा ना कि अब ये चीजें होंगी। इसलिए वो जो कानून के अंदर बात थी, ठीक है, चीफ जस्टिस साहब ने चीज का नोटिस लिया तो लोग आए, अच्छी बात है। नहीं, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब का भी फोन आया और उन्होंने कहा कि इस चीज का वो आप नोटिस लें और उनको टाइम दे बढ़ाने की। बहरहाल कट ऑफ डेट भी इनको, कट ऑफ टाइम जो है वो भी अनाउंस करना चाहिए कि इतने टाइम तक लोग वहां पे पहुंच जाएंगे तो उनको पार्टिसिपेशन की इजाजत है। वो तो 6 बजे तक जितने पहुंचे हैं उन्हीं को वो इंक्लूड करेंगे, उसके बाद अगर जो लोग एक और चीज में इंपॉर्टेंट जो फर्क आपने भी नोट की कि जर्नलिस्ट ने सवाल करने की कोशिश की, वो सवाल क्या था कि जी टर्न आउट कितने % रहा। ये बिल्कुल अनफाउंडेड क्वेश्चन है। इस वक्त एकदम इस वक्त ये कह देना कि कौन सी पार्टी जीत रही है और आपका टर्न आउट कितने % रहा, मेरे ख्याल जर्नलिस्ट को भी ऐसे सवाल से नहीं गुरेज करना चाहिए। लेकिन ये दोनों सवाल जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कौन सी पार्टी जीतती है और टर्न आउट क्या है, एक्सक्लूसिव है। इनका आपस में एक दूसरे से लेन देन बार का। जी गिल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसी गुफ्तगू के दौरान? आई विल ऐड लिटिल मोर टू व्हाट यू आर सेइंग कि जाहिर बात है, लेकिन जो जोशो खरोश देखने को मिलता है, जो पैरामीटर जिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि लोगों के पार्टिसिपेशन का लेवल क्या है, मतलब बलूचिस्तान में मैंने देखा कि अनप्रेसिडेंटेड लाइन्स लगी हुई थी, तो आई कैन सेफली से कि टर्न आउट बेहतर होगा। बट एक्चुअली तो फिगर्स बाद में आएंगे, बट आपकी जो और ऑन द स्पॉट जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो भी मैटर करती है कि आप जब शहर में जाते हैं या किसी जगह जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो चीजें आपको जब हैपनिंग को देखते हैं तो आप एवेल्युएट कर सकते हैं। आपका मुशाहिदा, ये मुशाहिदा ये भी एक चीज होती है। और इसके साथ मैं एक दूसरी चीज ऐड करना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो ज़ाब्ता इखलाक आज के दिन के लिए जो उन्होंने जारी किया था, उसमें 2-3 चीजें थी कि मसलन कोई भी जो पार्टी हेड्स हैं या जो भी उम्मीदवार हैं वो मीडिया पे आके उस तरह बात नहीं करेंगे कि जैसे वो कोई वोट अपील कर रहे हैं ड्यूरिंग इलेक्शन और वो शायद उस पर इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी बुनियाद पे मैं हाल नोटिस भी सर्व हुए, नोटिस हमारे सामने पार्टी हेड्स को नोटिस भी सर्व हुए हैं, उसमें कई आरा सामने आ रही है। ये अच्छी बात है। हमें ब्रेकिंग न्यूज की जाने बढ़ना है। ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, ओवर टू न्यूज रूम। पाक फौज के तर्जुमान DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी हमवतनों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम ने बाहर निकलकर वोट डाला और तमाम प्रोपेगेंडा जो है उसको मुस्तरद कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात है जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे आसिम रिजवान से। आसिम रिजवान, पाक फौज की जानिब से ट्वीट सामने आया है जिसमें अवाम का शुक्रिया अदा किया गया है, मजीद क्या कहा गया है इस ट्वीट में? जी बिल्कुल, हमारा डायरेक्टर जनरल ISPR जो है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन मेजर जनरल आसिफ गफूर, उन्होंने आपसे चंद ही मिनट कब जो है अपने समाजी राब्ते की एक वेबसाइट पर अपने एक पैगाम में पाकिस्तानियों का अपने हमवतनों का शुक्रिया अदा किया है। उनका अपने आर्म फोर्सेस के साथ प्यार और एहतराम जो है, उनकी जो अपनी आर्म फोर्सेस के साथ उनका जो मोहब्बत का रिश्ता है उसके पर, और उनका ये भी कहना है अपने पैगाम में कि पाकिस्तानी अवाम ने हर किस्म का मनफी प्रोपेगेंडा जो है, हर किस्म का जो भी प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ किया जा रहा था उसको जो है मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने उनका ये कहना है कि हम जो है बहसीत कौम अवाम की गैर मुतज़लज़ल हमायत के बायस मजबूत है। पाकिस्तान आर्म फोर्सेज जो है
उनकी मजबूती की और उनकी साबित कदमी की एक बड़ी वजह यह है कि उनके पीछे उनकी पूरी कौम जो है वो खड़ी है। उनका ये भी कहना था कि मुसल्लह अफवाज जो है उनके तमाम पर्सनल जो है उनकी जिंदगियां पाकिस्तान के लिए, अपने मादरी वतन के लिए और अपने अवाम के लिए वक्त है। उन्होंने ये भी कहा कि आज पाकिस्तान जो है वो एक दफा फिर जो है वो जीत गया है। हम अपने नाज़रीन को बताते चले हमारा यहाँ पर कि जो पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन थे जो आज सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक जिनकी जो है पोलिंग का अमल जारी रहा, उसके लिए जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो फुल प्रूफ किए गए थे। इवन के जो बैलेट पेपर्स हैं उनमें भी सिक्योरिटी फीचर्स रखे गए थे और मुसल्लह अफवाज जो है उन्होंने अपने 3 लाख से ज्यादा जवान जो है वो इन जनरल इलेक्शन में सिक्योरिटी के ऊपर मामूर किए, जिनमें पाकिस्तान नेवी भी शामिल थी, जिनमें पाकिस्तान एयरफोर्स भी शामिल थी, जिसमें पाकिस्तान आर्मी भी शामिल थी और पाकिस्तान आर्मी के जो रिजर्व ट्रुप्स हैं वो भी उन्होंने भी आज अपने फ़राइज़ जो है वो अंजाम दिए। इसके अलावा पुलिस जो है उन्होंने भी अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और अल्हम्दुलिल्लाह जनरल इलेक्शंस में जो पोलिंग का अमल था वो बड़े पुरअमन तरीके से जो है वो अपने पाए तकमील को पहुंचा। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं उनके अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनके साथ लगन का एक सबूत भी है। वो कि चंद इक्का दुक्का कुछ वाक़यात हुए, उनमें हमने देखा कि गुज़श्ता रात जो वाक़या पेश आया बलूचिस्तान में, जिसमें NA 271 की जो पोलिंग टीम थी उसको जो मिलिट्री प्रोटेक्शन टीम जो उनको लेकर जा रही थी अपनी डेस्टिनी की तरफ, उसके ऊपर जमन माउंटेन रेंज जो है वहां पर एम्बुश कार्रवाई भी हुई, जिनमें हमारे 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। जिनमें से एक जवान जो है उनका ताल्लुक पंजाब से, एक जवान जो है उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से और एक जवान जो है उनका ताल्लुक KPK से था। लेकिन वो हमारी इस मुसल्लह फौज का जो अज़्म है, जो कमिटमेंट है उनकी कौम के साथ, उसका एक अकास भी था। हमने गुज़श्ता भी अगर हम अपनी तारीख पर निगाह डालें तो हमने ये देखा है कि मुसल्लह अफवाज जो है उन्होंने रेस्क्यू का काम हो, रिलीफ के दिफा का काम हो, हमेशा वो हारबल दस्ते के तौर पर मौजूद रही है और उन्होंने कौम का हमेशा मुश्किल वक्त में जो है वो साथ दिया है। पाकिस्तानी कौम जो है वो भी हमारा अपनी जो मुसल्लह अफवाज है उनसे बेपनाह मोहब्बत करती है और इसी बात का इजहार जो है वो डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने शुक्र के पैगाम में कहा भी है। उनका ये कहना है कि जहां पर मुसल्लह अफवाज है उनकी जिंदगी पाकिस्तान अपने अवाम के लिए वक्त है, वहीं पर अवाम की जो गैर बिल्कुल सही आपने कहा कि हमारी जिंदगी पाकिस्तान अवाम के लिए वक्त है। नाज़रीन, हम आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं कि पाक फौज के तर्जमान DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने हर तरह के मनफी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम अवाम की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत के बाद मज़ीद मजबूत हुए हैं और हमारी जिंदगी पाकिस्तान के लिए वक्त है। ये थी अब तक की PTV ताज़ा तरीन। पाकिस्तान की अनबीटेबल डेटा ऑफर सुपर वीकली प्लस से पाएं 5000 MB पूरे हफ्ते के लिए सिर्फ 156 रुपए में। अभी *20# डायल करके सब्सक्राइब करें और तेज तरीन 4G इंटरनेट के मजे उड़ाएं। एक नई ऑफर, एक नया ख्वाब, Zone 4G। वेलकम बैक जी। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है इस वक्त। वोटिंग का वक्त खत्म हो चुका है। कुछ ही देर बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद, वो मोमेंट आ जाएगा जब हम तमाम जो फैसले जैसे जैसे हमारे सामने आएंगे हम आपसे शेयर कर सकेंगे। इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हैं वो हम पहले उसका अहाता कर चुके हैं। एक तो हमने आपको सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जो स्टेटमेंट थी वो सुनवाई और उसका अपडेट दिया। दूसरा ये भी है कि DGISPR साहब की एक ट्वीट आई जिसके अंदर उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम की तारीफ की, शुक्रिया किया और ये भी कहा कि पाकिस्तान अफवाज और पाकिस्तान जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके लिए जो पाकिस्तानियों की मोहब्बत है वो भी सबको नजर आ गई। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो है पाकिस्तान दोबारा जीत गया। और मेरे ख्याल में ये सेंटिमेंट हम सबका है इस वक्त। और इसके साथ वापस आते हैं स्टूडियो में
और तबसरे जो है समीना साहबा ले चलिए जहाँ पे ले चले हमें। मेरे ख्याल से अतार रहमान साहब को थोड़ा सा इन्वॉल्व करते हैं। साहब अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शंस हो गए, सारी सूरत हाल आपके सामने है, टर्न आउट भी बहुत बेहतर है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से, एटीट्यूड के हवाले से भी आपने देखा, सबने शुक्रिया अदा किया। हम पाकिस्तान टेलीविजन बहैसियत पूरी कौम की हम खुद भी सबका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने किया, इसको कामयाब बनाया। जमहूरियत का ये तसलसल और ये सिलसिला जिसको कि हमारे दुश्मन रोकने की बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन हम चले जा रहे हैं, इसको हमारी आने वाली नस्लों में, हमारे आने वाले टाइम में, मतलब इसको आप किस तरह से कंपाइल करेंगे कि 5 साल एक हुकूमत खत्म हुई, इसमें टाइम पूरा किया, दूसरी हुई, अब हम तीसरे फेज में जा रहे हैं, कैसे? बिल्कुल, देखें जो डेमोक्रेसी है ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है और इसमें बेहतरी एवोल्यूशन के थ्रू आती है। जितनी इसमें कंटिन्यूटी रहेगी उतनी इसमें बेहतरी आएगी। तो ये एक बड़ा माइलस्टोन था जो आज हमने अचीव कर लिया है और मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें जो अभी ISPR के हवाले से बात हुई या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, तो हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका बड़ा प्रोएक्टिव और उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया सिक्योरिटी के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने अपनी सारी जिम्मेदारियां अदा की और वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर और सारी आवाम जो है उन्होंने अपनी जो उनको जिम्मेदारियां दी गई थी मसलन अगर उन्होंने अदा की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कोड ऑफ कंडक्ट जो था जो इशू किया उसमें यह था कि जो कैंडिडेट्स जो है वो खुसूसन और वोटर जो है वो बिलउमूम जो है वो सोबराइटी जो है उसका मुजाहरा करेंगे, पेशेंस का मुजाहरा करेंगे, परसेवरेंस का मुजाहरा करेंगे। तो प्रैक्टिकली लोगों ने इसको प्रूव भी किया। देखिए कोई ऐसे जो हमारे वहाँ पॉलिटिकल जो मुख्तलिफ वर्कर थे मुख्तलिफ पार्टियों के, उन्होंने कन्फ्रंटेशन को अवॉइड किया। कोई ऐसे वहाँ पे किसी भी पोलिंग स्टेशन पे कोई इतने बड़े लेवल पे कोई इस तरह वाकया नहीं हुआ कि क्लैश हुआ पार्टीज के दरमियान पे या इस तरह। तो ये एक मेच्योरिटी की ये भी एक चीज जो है ये मेच्योरिटी, जैसे कि सेक्रेटरी साहब ने भी अभी बात की कि जो 2013 के बारे के हवाले से अगर हम इसको हम कंपेयर करें इन इलेक्शन को तो इसमें ज्यादा बेहतरी है और यही एक डेमोक्रेसी की कामयाबी है और ये अमल जितना जू आगे जाएगा इसमें इतनी बेहतरी आएगी। बिल्कुल सही। अहमद तगीर, आप उस काविश का हिस्सा भी रहे हैं जिसके अंदर इलेक्शन को मॉनिटर किया गया और उसके अभी जो कंपैरिजन होगी वो भी हमारे सामने आएगी। मुझे जरा ये बता दीजिए कि रिजल्ट जो है तदवीन होके कब से हमारे सामने आना शुरू होंगे, खासतौर पे फॉर्मल ऑफिशियल रिजल्ट जो होते या अनऑफिशियल हो लेकिन फॉर्मल रिजल्ट जो है फॉर्मल चैनल से वो कब तक आना शुरू हो रहे हैं? देखिए उसमें जो हद मुकर्रर की है इलेक्शन कमीशन ने वो तो रात 2 बजे तक की है। ठीक है। अच्छा। और उन्होंने बाकायदा इस पे वाज़ेह हदायत हैं कि वो जो पिक्चर उतार के उसकी जो स्नैप शूट होगा उसको मैक्सिमम 2 बजे तक हर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो बाउंड है कि वो यहाँ पे भेजे इसको। ठीक है। तो इसका मतलब कि 2 बजे के बाद तो आपके पास मैक्सिमम आ जाएंगे। अब कब आना शुरू होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो 6 बजे के बाद जो है वो, चूंकि मैं दिन में इलेक्शन कमीशन में भी बैठा हुआ था तो वहाँ हमारा PTV का पूरा सिस्टम है और हमें ये एजाज हासिल है। मैं दोबारा नाजरीन को हम ये बताते चलें कि पाकिस्तान टेलीविजन ये हमारे MD साहब को इसका क्रेडिट जाता है, हमारी मैनेजमेंट को जाता है, हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे कंट्रोलर्स और बाकी जितनी भी हमारी हायरार्की है उनको क्रेडिट जाता है। उन्होंने बड़ी मेहनत की है और ये सारा जितना भी इलेक्शन सिटी है इसको बनाने में और इसको यहाँ तक लेके आने में प्रोड्यूसर्स हमारे जितने भी और बिहाइंड ये कैमरा मैन सब लोगों की इसके अंदर जो है वो काविश शामिल है। तो जब मैं दिन में वहाँ इलेक्शन कमीशन में बैठा हुआ था तो उनसे जो हमारी बातचीत चल रही थी उनके डिप्टी डायरेक्टर और उनके डायरेक्टर साहबान से, तो उनका ख्याल था कि 6 बजे तक पिछली जो प्रीवियस प्रैक्टिस थी वो कहते हैं कि 6 बजे तक हमारे पास वो रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो तो उनके आते हैं पोलिंग स्टेशन हल्कों की जो है हल्के, चूंकि वो ये सारे लैंड करेंगे नादरा में, नादरा में आएंगे और नादरा उसको कैलकुलेट करता जाए। नादरा के पास टोटल वोटर्स मौजूद हैं ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं। वो जैसे ही कुल वोटर्स उनकी तादाद या जितने वोट पोल हुए वो जैसे ही उनके टैबुलेट करने सारे आ जाएंगे उसके बाद वो उसको जो है वो अनाउंस कर देंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एडिशन करता चलूं, चूंकि अभी DG ISPR ने भी आपने उसको वो बताया भी, उन्होंने कहा भी सिक्योरिटी। अच्छा, मैं 93 से जर्नलिज्म में हूँ, बहुत सारे मौकों पे मैंने देखा है, बहुत सारे इलेक्शंस को मैंने कवर किया। PTV में 2000 से हैं तो 2001, 3 और 8 और फिर 13 और फिर ये वाला जो है इलेक्शन, ये सारे हम लोगों ने देखे हैं यहाँ पे। यकीन कीजिए इससे बेहतर मुझे सिक्योरिटी नहीं नजर आई।
बिल्कुल सही। और क्रेडिट जाता है, मेरे ख्याल में क्रेडिट जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इसकी तारीफ हम बार बार कर रहे हैं और ये करते जाएंगे। ये राना कैसर साहब के पास मैं बात को लेकर दोबारा आना चाहता हूँ। ये जो इन्होंने तो आज का तजर्बा बताया, आपका तजर्बा तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा है सहाफत में और खासतौर पर रिपोर्ट करने में इलेक्शंस को। तो आपके ख्याल में कब से हम जो है मंजरनामा देखना शुरू करेंगे, कब तक हमारे पास रिजल्ट आना शुरू होंगे और कब तक क्लियर हो जाएगा? अहमद सलीम साहब ने बिल्कुल जो बात कही है कि कट ऑफ टाइम जो है वो डेडलाइन है रात 2 बजे, ठीक है, यानी 26 तारीख की सुबह 2 बजे तक। उस वक्त तक तो तमाम नतायज लैंड कर जाने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उसी वक्त करेंगे, ये ग्रेजुअली आना शुरू हो जाएंगे। तकरीबन 7 बजे के करीब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अनऑफिशियल और ऑफिशियल रिजल्ट जो है वो आपके सामने आना शुरू होंगे। और उसके बाद तकरीबन 10 बजे के करीब आप देखिएगा कि आपके पास एक इतना रश हो जाएगा रिजल्ट का कि तमाम इलाकों से हम दूर दराज जीवन इलाके जो है उनसे भी आना शुरू हो जाएगा। जाने का वक्त नहीं मिलेगा, सर खुजाने का हमें ट्रांसमिशन के दौरान बिल्कुल वक्त नहीं मिलेगा। ट्रेंड भी पता चलेगा। ट्रेंड देखिए, ट्रेंड इतनी हाँ कुछ अंदाजा होगा, लेकिन रात 12 बजे के करीब आपको ट्रेंड का अंदाजा होगा जब आप समझेंगे कि एक बल्क आपके पास रिजल्ट का जब आ चुका होगा। अभी पहले से अंदाजे लगा लेना वो यू कैन नॉट, जैसे हम कहते हैं ना कि आप जजेस यू कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ द जजेस। आज का फैसला भी अब आपने करना वो जज से आज, तो यू कैन नॉट रीड देयर माइंड अंटिल इट इज पब्लिक। एग्री कितना करते हैं राना साहब की इस बात से, और वाकई में ये एक जो माजी की एक मिसाल है। इस दफा तो हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसके ऊपर जो है उन्होंने कहा कि अमल दरामद होना है कि रिजल्ट जो है वो एक और एक बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान टेलीविजन के बाद साहब के बाद होंगे, यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से जो है वो आगे जाएंगे। ज़ाहिर महमूद खटक साहब ने ज्वाइन कर लिया, कहाँ से जी बताइए? जी मुझे ट्रांसमिट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस कराया गया ये पाकिस्तान में पहली दफा कराया गया, ठीक है, लास्ट दफा ये नहीं था। और ये देखा जाएगा कि कैसे ये ऑपरेट करता है। अभी तो टाइम शुरू हुआ है, नाउ द क्रंच टाइम बिगिंस। दूसरी जो बात है कि जितने रिफॉर्म्स किए गए इलेक्शंस में, इलेक्शन रिफॉर्म्स वो दे आर ऑल्सो बीइंग टेस्टेड, और उनको भी देखा जाएगा हर स्टेज पे, और उसके थोड़ी देर के बाद पता लगेगा कि कहाँ कहाँ फ्लॉज थे और हम कितने कामयाब हुए, कितना सफर तय किया। देखिए इलेक्शन कमीशन एक बहुत अहम इदारा है और उसको हमने मजबूत से मजबूत तर करना है। अभी भी आवाजें आपको दाएं बाएं से आती हैं कि ये शायद वो कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाती है, तो लेकिन हम सही स्टमक में बढ़ रहे हैं और एक वक्त आएगा कि एक फेज में से गुजर के हम मोर स्ट्रॉन्ग, मोर ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे, हमारे इदारे भी मजबूत होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छे बड़ा इट्स ए गुड ओमेन और चीजें बिल्कुल सही कीमत में जा रही हैं। थैंक यू सो मच जी। ज़ाहिर महमूद खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे इस हवाले से डिटेल्स जानते हैं। जी ज़ाहिर महमूद खटक साहब बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? ये हल्का इंतहाई अहमियत का हामिल हल्का तो एमपी के एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन की, इससे पहले ये अमीर हैदर होती जो कि वज़ीर आला थे KPK से, वो ये सीट विन कर गए थे 2013 में। इसके बाद अब यहाँ पे जो मुकाबला था मोहम्मद आतिफ खान और अमीर हैदर खान होती के दरमियान था। अगर हम देखते हैं तो MNA की भी खास स्ट्रॉन्ग होल्ड जो मुल्क साहब की सूरत में हमें नजर आई थी, लेकिन वो मगेमी जो कि इनके खास नजर नहीं आ रही थी, तो उसकी कोई खास वजह होगी क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड एनपी और पीटीआई में जो कि मोहम्मद आतिफ खान जो कि KPK में मिनिस्टर भी रह चुके थे, वजीर ताजी, उसका मुकाबला है अमीर हैदर खान होदी के साथ। और यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी रजिस्टर वोट की तरफ देखते हैं तो 4,19,713 रजिस्टर वोट थे जिसने आज अपने राय दही इस्तेमाल की। अब ये चूंकि आने वाला वक्त नहीं बताएगा कि कौन सा बंदा जो है ना अपने नुमाइंदे जो है ना उसको कमीशन में भिजवाएंगे, ये तो बाद में पता चलेगा। जहाँ तक टर्नआउट की बात करेंगे तो टर्नआउट इंशाल्लाह यहाँ पे इस वक्त 2008 में, क्योंकि यहाँ पे टर्नआउट KPK में 34% था और 2013 में अगर देख ले तो 45% था। यहाँ पे इस मरतबा जो हमें लग रहा है टर्नआउट काफी ज्यादा होगा और उसकी वजह भी है कि यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में लोग जो थे वो अपने घरों से निकल आए हैं, अपने कंटेस्ट को, अपने उम्मीदवारों को जो ना उन लोगों ने अपने राय का इस्तेमाल किया उसके हक में। और दूसरी अहम बात जो कि यहाँ पे मुझे नजर आई वो ये है कि औरतों की खवातीन की बड़ी तादाद जितने भी उम्मीदवार थे, चाहे वो MMA के हो, चाहे वो PTI के हो, चाहे वो नून की तरफ से या दूसरे पार्टियों की तरफ से हो, उन्होंने कन्वेंस किया था खासकर खवातीन को कि वो
पोलिंग स्टेशन पे आए और उन लोगों ने भी अपना वोट कास्ट किया हुआ है। और जहाँ तक टफ मुकाबले का ताल्लुक है तो लाजमी बात है पीटीआई की हुकूमत भी रह चुकी थी और दूसरी तरफ जो है ना वो अमीर हैदर खान होडी का भी एक स्ट्रांग होल्ड था, एक आबाई हल्का है यहाँ पे, तो अच्छी खासी पोजीशन लग रहा है कि पीटीआई और एएनपी के दरमियान मुकाबला होगा। सही, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। एक बात इन्होंने भी कही और आज दिन भर जितनी देर से हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं उसमें भी ये देखा गया। सुबह कुछ जगहों से ये रिपोर्ट हुई कि शायद कुछ एरियाज में खवातीन को रोका जा रहा है, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो एक लगा दिया बैरियर कि उस हल्के का रिजल्ट जो है वो नहीं माना जाएगा जिसमें खवातीन की जो सर्टेन परसेंटेज है उससे अगर कम वोट हो, ये इस पे किस हद तक अमल दरामद होगा? हमने वो परसेंटेज समीना जी है 10 जी बिल्कुल 10% से कम अगर किसी हल्के में खवातीन के रजिस्टर्ड वोट्स जो उनका 10% कम वोट कास्ट होगा तो वहाँ पे कालादम करार दिया जा सकता है रिजल्ट को ओवरऑल। तो जिन हल्कों में मैंने सुबह देखा कुछ इतलात आई कि कुछ हल्कों में फारूक साहब वो खवातीन को रोका जा रहा था और उसका सख्त नोटिस लिया गया। और सिर्फ यही नहीं कि खवातीन के हवाले से कुछ हल्कों में तो जो जाली प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी पकड़े गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन का आप देखिए कि बड़ा फोर्सफुली इंप्लीमेंट कर रहा है अपने कोड ऑफ कंडक्ट को, और जहां जहां से कोई इतला आ रही है उसका उसी वक्त नोटिस लिया गया और एक्शन भी किया गया। कि बहुत सारी बातें जैसे आज आप देख रहे हैं सिक्रेसी ऑफ वोट का भी एक इशू बना कि कैमरा कैसे पोलिंग स्टेशन के अंदर गए, किसने इजाजत दी? अगर कोई कैंडिडेट अपनी मोहर लगा रहा है अपने बैलेट पेपर के ऊपर, वहां पे कैमरा कैसे गया? स्टिल फोटो तो आप देखिए, आप दिखाते हैं मुख्तलिफ कैंडिडेट जाते हैं साहब तो वो अपना वोट कास्ट करते हैं, स्टिल पिक्चर तो हो जाता है उस प्लेटो के ऊपर जो कि कैमरा लेके जा रहा है और ये देख रहा है कि कैंडिडेट भी खुद है और उनका अपना नाम है और हमने तस्वीर दिखानी है उसकी। तो ये मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे वाकयात हैं जिसपे इलेक्शन कमीशन नोटिस लिया और लिया भी जाना चाहिए। कि देखिए इस वक्त पाकिस्तान का मेरी नजर में ये जो इंतखाब है ये बहुत अहम है, पाकिस्तान को इस्तेकाम भी दे सकता है और पाकिस्तान को कमजोर भी। अब ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर है कि जब ये रिजल्ट आते हैं उनको खंदा पेशानी से तस्लीम करें, माजी की तरह रिपीट ना करें कि कोई धरना हो रहा है, कोई मैं ना मानूं, मुझे टाइम नहीं मिला। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और वो शाखसाना इस तरफ मैं आपको वार्न कर रहा हूँ और सबको वार्न कर रहा हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है आज के, ये टाइम बढ़ा दें, हमारे लोग नहीं आ रहे, ये सिर्फ एक बहाना क्रिएट किया जाएगा। इन केस दे डोंट विन दे विल से देखें जी हमारे साथ तो ये ज्यादती होगी। चले अभी तो देखना है कि क्या होता है। गिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे पता है हमने बाएं बाजू की तरफ भी जाना है, लेकिन गिल साहब अगर आप ऐड करना चाहते हैं मैं इसमें थोड़ा सा ब्रीफ कहूंगा कि ठीक है पॉलिटिशियंस, लेकिन मीडिया का रोल भी हमें देखना पड़ेगा। जो कि हर जगह मौजूद है, यूबिक्विटस मीडिया, और जो कि जिसका फूड है, फॉडर है, जिसको स्टफ चाहिए, ब्रेजनली जो है ना फॉलो करता है उसको, और ब्रेजनली रूल्स को भी वायलेट करता है, और इसको पूछने वाला कोई भी नहीं है। इमरान खान को तो नोटिस कर दिया, मीडिया हाउसेज के बारे में किस तरह इसको देखा जाएगा, वहाँ पे सहाफत खतरे में पड़ जाएगी, बहुत सारी उसको भी बहुत सारी चीजें हैं, इसको भी देखना चाहेगा कि मीडिया का रोल भी इसमें क्या है। मीडिया का रोल एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, इन्होंने सोशल मीडिया का जिक्र किया, जहां मैंने कहा किस तरह ये यकलख्त हुआ, टर्न आउट भी बढ़ गया, ये सारी चीज में मेन रोल किस चीज ने अदा किया? आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया क्योंकि यहाँ पे मीडिया की बात हो रही है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हम लोग हैं, प्रिंट मीडिया जो दूसरे दिखा रही, एक है सोशल मीडिया। किस तरह से आप समझते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सोशल मीडिया के हवाले से बहुत बात भी की है कि कई हद तक बहुत पॉजिटिव भी है और कुछ चीजों में बहुत नेगेटिव भी है, तो उसका आप किस हद तक इम्पैक्ट? देखिए इम्पैक्ट तो लाजमी बात है उसका होगा और हो रहा है। सोशल मीडिया को अगर हम प्रॉपरली यूज करना चाहें तो उसके लिए मेरे ख्याल में उसके लिए कोई शॉर्टकट है नहीं। जब तक लिटरेसी रेट जो है वो हमारे यहाँ इम्प्रूव नहीं करेगा, लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी, तो सोशल मीडिया का नेगेटिव यूज जो है वो होता रहेगा। और इसके हवाले से मसलन गवर्नमेंट की जो इस हवाले से रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं उनकी जिम्मेदारी है कि मसलन जो इस तरह के वेबसाइट्स हैं या इस तरह के दूसरे, तो उस पर वो रिस्ट्रिक्शन या उससे कोई ऐसा प्रोसीजर, चूंकि डेवलपमेंट्स इस हवाले से काफी हो चुकी हैं साइंटिफिक हवाले से, तो इसको रोका जा सकता है किसी हद तक, लेकिन ओवरऑल इसको उसी टाइम कंट्रोल किया जा सकता है जब हमारे यहाँ अवेयरनेस आएगी। और अवेयरनेस आ रही है विद पैसेज ऑफ टाइम, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। और